Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we'll be studying the economic and financial affairs, and also we'll be knowing about the general awareness topics which are related to your UPSC, RBI Grade B and SEBI Grade A examination. So we'll be starting with the articles of November month, but before that I would like to tell you that Ruhi ma'am, she is a recognized educator on Unacademy. There she takes all the comprehensive courses for SEBI Grade A and RBI Grade B examination. You can use the code SC10 for getting the discount of 10% on Unacademy's subscription, and also you can go for the enrollment process right now. And while going for the enrollment process, do not forget to use the code SC10 so that you can access all the free content which is provided by Ruhi ma'am on Unacademy Plus. So these are the courses which are taken by Ruhi ma'am: RBI Grade B for phase 2, then SEBI Grade A paper 2. All the banking, financial or economic awareness topics would be discussed by her. Current affairs for all the bank exams, insurance awareness for all insurance exams. Okay, so you can go for the subscription on Unacademy by using this code. So there you would be able to access, as I told you, the free content like the videos, the other study materials like the PDFs, the mock test links, and also discount. So whenever you are asked for any invite code, you just have to use the code SC10 so that you would be able to access the content. Now this is the Telegram group where you can join in, and there you would be able to find all the information related to the upcoming courses and also the study material which is being provided by her. So Simple Concepts by Ruhi ma'am, this is the name of the Telegram channel that you can join. Now we are getting started with our articles. So the very first article is very much related to our Indian economy. So it is basically related with Atmanirbhar Bharat 3.0. So we'll be studying that what were the measures announced by Finance Minister in this particular scheme. So it has been in the news that Union Minister for Finance announced various measures as part of Government of India's stimulus to the economy under Atmanirbhar Bharat 3.0. So you should know the backstory that Atmanirbhar Bharat, this scheme was basically launched when the pandemic was here in the country. Okay, so the main point is that जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसी के दौरान आत्मनिर्भर भारत करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है सो दैट द स्टिमुलस कुड बी प्रोवाइडेड टू द इंडियन इकोनॉमी. Okay, so we are here studying that what are the measures. So one by one we'll be discussing all of them. So first one is that emergency credit line guarantee scheme for MSMEs, businesses, mudra borrowers. Okay, so here we are talking that how the businesses were affected because of COVID-19. Okay, the economic activity in the business sector, it slowed down, and because of that the stimulus is being provided to the people who are engaged in this sector. So here the scheme is for MSMEs, okay, micro, small and medium enterprises, then businesses, mudra borrowers. Okay, these basically are the borrowers who belong to particular business enterprise and they are being provided the loans by government under this particular scheme. So the loans are being provided for the business purpose, and those the scheme under which the loans are being provided, that scheme is called Mudra scheme. Okay, so it has been extended till March 31, 2021. So जो 2020 में लॉन्च किया गया था प्रोग्राम, वो 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. So this is the gist of this particular scheme. Then the another point is that 10 more champion sectors will be covered under PLI. Okay, so we have studied that production linked incentives क्या होते हैं. हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जो PLI स्कीम है उसके अंडर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, और वो सब्सिडीज आपकी एक ही कंडीशन पे प्रोवाइड की जाती है, दैट इफ द इंक्रीमेंट इन योर सेल्स, okay, if the government can see the increment in your sales for regularly 5 to 3 years,
okay, for 5 years, then you would be provided with some subsidies from government side. So that is the PLI scheme. तो कुछ सेक्टर्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड थे और अब उसमें कुछ न्यू सेक्टर्स भी ऐड कर दिए गए हैं. सो जैसे कि जो ACC बैटरीज हैं और जो वाइट गुड्स जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे ACs हो गए, ओके, LEDs हो गए, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं. फार्मास्यूटिकल्स है. सो ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स विच हैव बीन ब्रॉट अंडर PLI's incentives. Okay, so this is basically to boost the competitiveness of domestic manufacturing. As I told you that PLI, this means that the Indian government is encouraging the domestic manufacturing. Okay, so that is the point. A sum of rupees 18,000 crore is being provided for PM आवास योजना. तो जो PM आवास योजना है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि वो अर्बन पुअर्स के लिए है. ओके, जो अर्बन सिटीज में पुअर्स हैं और वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. ओके, उनका जो एक क्राइटेरिया है, अगर वो उस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, वो उसको सेटिस्फाई करते हैं, देन दे वुड बी प्रोवाइडेड विथ अ होम from the government side. So this Awas Yojana urban over and above rupees 8,000 crore already allocated this year. Okay, so this scheme is also a support for construction and infrastructure. Okay, so relaxation of earnest deposit money and performance security on government tenders. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑन गवर्नमेंट टेंडर्स क्या है. तो आपने देखा है कि जिस तरीके से टेंडर्स फिल किए जाते हैं, ओके, बिडिंग होती है जिससे कि जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका कोई भी प्रोजेक्ट है वो बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो आपस में कॉम्पीट करते हैं और उसी के थ्रू उनको काम मिलता है. तो जिस भी प्राइवेट प्लेयर या कोई भी एक ऐसी एंटरप्राइज है जिसकी क्वालिटी प्लस द अमाउंट व्हाट दे आर चार्जिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, अगर वो गवर्नमेंट को सही लगती है, ओके, जो गवर्नमेंट की क्राइटेरिया को फॉलो करती है, तो गवर्नमेंट उनको अपना टेंडर दे देती है. दैट मीन्स दैट प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड बाय दैट पर्टिकुलर फर्म और बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो हियर द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ओके, देयर वुड बी रिलैक्सेशन इन परफॉर्मेंस सिक्योरिटी. तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपसे पहले ही एक फाइनेंशियल गारंटी ले ली जाती है दैट दीज आर द क्राइटेरियाज टू बी फॉलोड फॉर दिस प्रोजेक्ट. इफ यू डोंट फॉलो those criterias, then this particular money would be taken away by government. So this is the financial security that is already provided by the bidder to the government. So here they are talking about that there would be relaxation in this particular program. Okay, so that is the point. So these are some other points like to provide ease of doing business. So in this times of corona, the most important thing for the businessman is that how easily they could do their businesses. Okay, because see, the thing is that the lockdown has been imposed. Because of that, the businesses have disrupted, and so government is now it has reduced the performance security from 5 to 10% to 3%. पहले जो आपको पैसा 5 to 10% देना पड़ता था, now it has been reduced to 3%. Here we are talking about the performance security. Okay, it will also extend to ongoing contracts and public sector enterprises. So it is not only for the private players, the private companies, but it is also for the public sector enterprises. And also it would be applicable to the ongoing contracts. Okay, so that is the point of this particular scheme. Then differential between circle rate and agreement value and real estate income tax under section 43CA of IT Act has been increased from 10 to 20%. Okay, जो differential rate है उसको भी 10 to 20% कर दिया गया है real estate sector में. Okay, so government will make 6,000 crore equity investment in debt platform of National Investment and Infrastructure Fund, which will help
NIIF provide a debt of 1.1 lakh crore rupees for infrastructure projects by 2025. ओके, सो जो डेट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आपका जो मनी प्रोवाइड किया जाता था, नाउ द अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. ओके, द NIIF it would be able to provide a debt of 1.1 lakh crore rupees for all the infrastructure projects which are going on in the country. Because see, hand to hand payment नहीं होता है मनी का इतने बड़े बड़े projects के लिए. So here they are talking that the project which is being completed or that is run by a particular firm, they would be able to get a debt of this much amount. Okay, so this is the point. Then the rupees 10,000 crore is being provided for PM गरीब कल्याण रोजगार योजना. ओके, हमने डिस्कस किया था कि रोजगार योजना है क्या. इसमें उन लोगों को इंक्लूड किया गया है जिनकी कोविड की वजह से या तो जॉब लूज हो गई है या फिर उनको जॉब मिल ही नहीं पाई है. So this is basically to provide jobs to those particular group of people. This will help accelerate rural economy. So this is to provide the rural employment. So prominently it is going to accelerate the rural economy. Around rupees 3,000 crore boost is being provided to Exim Bank for promoting project exports under Indian Development and Economic Assistance Scheme. आइडिया स्कीम है आपकी. इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो भी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट की जा रही है इंडिया से, वो इंडिया की इकोनॉमी को हेल्दी बनाएंगे. ओके, दिस इज बेसिकली गोइंग टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमी. जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, हम दूसरी कंट्रीज़ को जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. तो इस जो प्रोसेस को हैंडल करता है वो अंडर आइडिया स्कीम हैंडल किया जा रहा है. तो उसके अंडर हम जो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट रुपीज़ 3,000 crore हैव बीन प्रोवाइडेड. ओके, सो एक्सपोर्ट बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए आइडिया स्कीम है आपकी, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए आपकी रोजगार योजना है, और जो रूरल लाइक अर्बन पुअर्स उनको घर देने की जो स्कीम है वो आपकी आवास योजना है. सो दीज आर सम ऑफ द सब पॉइंट्स which are included in this particular subject. Rupees 900 crore is being provided to Department of Biotechnology. See, here the major role is played by the health infrastructure. Okay, in this times of corona, the major role is something that is played by Department of Biotechnology and also the research and development sector of various institutions. ओके, हमने देखा है जो भारत बायोटेक है, हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है. ओके, सो दीज आर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर द कंपनीज which are coming forward with the vaccine ideas. So this basically is for the development of Indian COVID vaccine. Okay, because see, if we are successful in this making vaccine, then we would be able to supply it to another countries, and for that we are getting paid obviously, and that is going to improve the Indian economy. So this is the whole idea behind this Atmanirbhar Bharat, that how this would improve our economy. So this is the whole idea. Then emergency retrieval system, ERS बोलते हैं हम जिसको, ये पावर लाइन्स में प्रोवाइड किया गया है. ओके, सो जब भी पावर लाइन्स में जो ट्रांसमिशन है वो जब कैरी आउट हो रहा है, तो उस दौरान अगर कोई भी फेलियर होता है, ओके, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो उस दौरान हम ERS यूज़ करते हैं फॉर द क्विक रिट्रीवल ऑफ पावर. ओके, यू कैन एस्टिमेट दैट हाउ बिग is that loss. Okay, if power cut is there, the whole city it would be in dark, the economic activity would slow down, the market would be stopped. So there are a lot of problems because of the failure of power transmission. So this particular technology is going to help in the quick retrieval of power transmission. Okay, and it has been developed by Structural Engineering Research Center,
constituent laboratory of CSIR, Council for Scientific and Industrial Research. So what are the key takeaways of this particular technology? At present ERS systems are imported and the cost is relatively high. तो इसमें खास क्या बात हुई है? खास बात ये हुई है, now it has been developed in our country itself. इससे पहले हम इसको import करते थे और इसकी जो cost थी import की वो काफ़ी ज़्यादा थी. So this is the gain, this is the positive point for our economy, for our research and development, okay, for our technological sector. This technological development will enable the manufacturing in India for the first time, which will be an import substitute. So अब हमें एक substitute मिल गया है, we don't have to import it from other countries, and thus that means that we would not be spending all that money that we were spending earlier in buying ERS systems. Okay, also it will cost about 40% of imported systems. Okay, तो हम 40% अब save कर पाएंगे because of development of this technology in our own country. Okay, then ERS, what exactly is the work of this ERS? It is the lightweight modular system that is used as temporary support structure to restore power immediately after the collapse of transmission line towers. ओके आपको पता है जो डिस्कॉम्स हैं हमारे, जो पावर ट्रांसमिशन करते हैं जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे, ओके सो वो सिस्टम है जिसके थ्रू पावर ट्रांसमिशन होता है बड़े बड़े एरियाज में. ओके फिर उसके बाद उसको डाइवर्ट करके जो छोटी छोटी जगह हैं जो हाई पावर की जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो बेसिकली दे आर हैंडल्ड बाय डिस्कॉम्स ओनली. सो जो ERS है वो क्या करेगा, जैसे ही जो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स हैं वो कोलैप्स करते हैं. कोलैप्स क्यों करेंगे? सी कोलैप्स करने के रीजंस आपके नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई साइक्लोन आ गया या कोई भी मैन मेड डिसरप्शन की वजह से अगर कोलैप्स करते हैं तो दिस सिस्टम विल हेल्प इन द रिट्रीवल, वो रिस्टोर कर देगा उस पावर को इमीडिएटली. सो दिस इज द गेन ऑफ दिस सिस्टम. It is made of structurally high stable box section. It is lightweight, modular and reusable. Okay, so these are some of the points which are related to the technology. Okay, तो ये आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेक्शन है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. Okay, so this is the fact. Now these are some other news like joint ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक. ठीक है, तो आपकी बुल स्ट्राइक नाम की एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट कराई गई है निकोबार आइलैंड्स में. ओके, अंडमान एंड निकोबार की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बुल स्ट्राइक करके ट्राई सर्विस का मतलब क्या होता है, जो आपके डिफेंस सर्विसेज के तीनों जो ऑल द दीज डिफेंस सर्विसेज, ओके जो आपकी आर्मी हो गई, आपकी एयर हो गई और दूसरा आपका नेवी हो गया. ओके, सो एयर डिफेंस, नेवी एंड आर्मी, ये तीनों कंबाइन होके एक एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहे हैं, उसको बुल स्ट्राइक बोल रहे हैं. तो इसमें जो मेन रोल होता है वो एयर डिफेंस का होता है. ओके, इसलिए होता है क्योंकि सी द पॉइंट हियर इज दैट कि जो दो आर्मी और नेवी है उनके अंडर ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी अलॉन्ग विथ एयर. बट द थिंग इज दैट हियर बेसिकली द एंटायर थीम इज बेस्ड ऑन द एयर स्ट्राइक्स एंड ऑल. ओके, कि अलॉन्ग विथ एयर स्ट्राइक्स जो आर्मी और नेवी है वो कैसे हेल्प कर सकता है इन कीपिंग द आई ऑन द कंट्रीज सिक्योरिटी. सो ये बात हो रही है. ओके, then Prasar Bharati signs MOU with Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics. ठीक है, तो आपका जो प्रसार भारती है it has entered into MOU with Bhaskaracharya National Institute of Space Applications and Geoinformatics. तो इसका एम क्या है? To bring quality educational programs to every household, ओके इंक्लूडिंग दोज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज. तो आपका प्रसार भारती करता क्या है? बेसिकली वो टेलीकास्ट करता है चीज़ों को.
ओके वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं प्रसार भारती के वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, आप देखिए कभी, ठीक है, यूट्यूब खोल के देखिएगा। दे आर समथिंग रिसोर्सफुल, प्लस दे आर रिच ऑफ द नॉलेज, दे आर रिच ऑफ नॉलेज. So you should watch such kind of channels because they basically give you some idea that what exactly is the thing that is happening around us. ओके तो उनका एम यही है कि अभी उन्होंने स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर कुछ वो प्रोग्राम टेलीकास्ट करना चाहते होंगे, जिसके थ्रू वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स को घर घर जाके बढ़ावा देना चाहते हैं. तो टीवी में अगर उनके चैनल्स आएंगे, उनके प्रोग्राम्स चलेंगे, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प द यूथ ऑफ आवर कंट्री. In fact, everyone who is inquisitive about learning things that what this happens, what that happens, so they would be able to get this through this particular program. ओके तो जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज है वहाँ पे ऑलरेडी लोग अवेयर है, बट द प्रॉब्लम इज विद द रूरल एरियाज, द रिमोट एरियाज. ओके तो ये उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है. Under the agreement, 51 DTH education TV channels shall be available as DD co-branded channels to all DD Free Dish viewers. Okay, so this comprises of, see already कुछ programs है जो उन्होंने launch कर रखे हैं, जैसे कि आपका स्वयं प्रभा है. स्वयं प्रभा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है. ओके इट दिस आई थिंक आई हैव वॉच्ड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम स्वयं प्रभा. I have used this one and this one is really good. Okay, each one of us can access, but the problem is with the people who are living in the rural and remote areas. We can access it, but the problem is with them, those people. Then e-vidya, because they don't even have the infrastructure where they could even know that what is Swayam Prabha, then Vande Gujarat, Digishala, e-vidya for classes 1 to 12 of NCERT. देखिए वो कोविड-19 के टाइम पर उनके पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके थ्रू वो इवन क्लासेस भी अटेंड कर पाते. ओके दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दिस टेक्नोलॉजी and so they lagged behind. So the government is thinking about them that these programs would help those people to learn, because see even the mobiles or the laptops are not available, but in fact in a village एक गांव में एक टीवी तो हो ही सकती है, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट अपने जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाना चाहता है. ओके सो दैट इज द पॉइंट. Indian Coast Guard's ICG ship C452 has been commissioned, indigenously designed and built by Larsen and Turbo. L&T जो है आपका सूरत में, उन्होंने Indian Coast Guard's ICG ship जिसको C452 बोल रहे हैं हम, उसको डिज़ाइन किया है. Okay, so this is again one of the point that could be added in our Atmanirbhar Bharat, because this has been built indigenously. It was indigenously built in India under the Make in India initiative, as I told you. Okay, a joint tri-service exercise, this we have already covered. Then Jio named title sponsor of Women's T20 Challenge. तो आपका जो जियो है अंबानी जी की, उन्होंने टाइटल स्पॉन्सर फॉर वुमेन्स T20 चैलेंज, ठीक है, BCCI ने नाम अनाउंस किया है, और कि जियो आपका वुमेन्स T20 चैलेंज को स्पॉन्सर करेगा. तो ये जो है ये इट इज़ गोइंग टू बी टेकन प्लेस इन शारजा. ओके सो दैट्स इन योर आबू धाबी. यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू, ओके ही इनॉग्रेट्स साई क्या होता है आपका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल सेंटर इन जीरकपुर. Okay, so he has inaugurated Sports Authority of India Regional Center in Zirakpur. And what is the aim of this particular program? It is to build more world class training facilities across India. जो आपके स्पोर्ट्समैन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए थ्रू दिस रीजनल सेंटर, ये इसका एम है. Sports Ministry sanctions budget of rupees 67.32 crore as financial support to 6 Khelo India state centers of excellence.
ओके तो अभी गवर्नमेंट एक खेलो इंडिया करके एक प्रोग्राम गवर्नमेंट का चल रहा है, ओके, इन 6 states. Okay, 6 states have been selected as centers of excellence, and for that this budget has been estimated. ओके तो विजन क्या है, मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज इन ओलंपिक्स 2028 की सोच रहे हैं कि हम उसमें इंडिया को ओवरऑल, ओके, सारे गेम्स को मिलाकर टॉप 10 कंट्रीज में लेकर आएंगे. सो दिस इज द विजन. रामी नैनी अवार्ड फॉर GR चिंतला. तो अब ये GR चिंतला कौन है? ओके सो ही इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, जो नबार्ड है हमारा, उसके चेयरमैन है. ही इज द चेयरमैन ऑफ नबार्ड, राजू चिंतला. सो ही हैज बीन अवॉर्डेड डॉक्टर रामी नैनी फाउंडेशंस विशिष्ट पुरस्कारम. And Sonu Sood, he has also been awarded with Pratyeka Purushkaram. He has done a lot of good deeds in this particular pandemic, and so he definitely deserves this. Okay, I know all of you must be knowing him, and आप में से कई सारे उनके फैन भी होंगे. So he has been awarded with this particular Pratyeka Purushkaram. Society for Biological Chemists. As I told you that biotechnology has played a very important role in developing vaccine in India. We have also come to know about some of the institutes about which we have never heard, like the SII, Bharat Biotech. Okay, so the Society of Biological Chemists India chooses Dr. Sushant Kar for Professor A.N. Bhaduri Memorial Lecture Award 2020. Okay, so he has been a senior scientist in CSIR CDRI Lucknow for Professor A.N. Bhaduri Memorial Lecture Award 2020. So he would be, he has been nominated for this particular award, and he would be receiving it soon. He has been awarded for his contribution towards. Now, why is he being awarded this particular, award? Because he has been really he was very active for his contributions towards defining the survival tactics of Leishmania donovani. Okay, so this is he has been active for the tactics. It is what is Leishmania donovani? Now they are telling this, that it is a protozoan parasite that infects macrophages and is a causative agent of visceral leishmaniasis. जो काला अजर है आपका, जो काला अजर जिसको हम विसरल लीसमैनियस बोलते हैं साइंस की भाषा में. सो दिस पर्टिकुलर लीसमेनिया दोनोवानी, दिस प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग काला अजर. Okay, it is a dangerous disease. So this biological chemist society has been chosen for this award. About जो उनको अवार्ड दिया जा रहा है वो A.N. बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड. दिस अवार्ड इज गिवन फॉर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज. Okay, so this is for biological chemistry and allied sciences, preferably related to parasitic infection. So जो हमने लीजमेनिया पढ़ा था वो पैरासाइट ही है एक. So this is given in the field of parasitic infections, those who make discoveries in this particular field. Filmmaker Hariharan has been chosen for prestigious J.C. Daniel Award for 2019. ओके, सो J.C. Daniel अवार्ड क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं जो दिया जा रहा है. इट इज़ कॉन्फर्ड बाय द स्टेट ऑफ केरला. ओके, हर साल स्टेट ऑफ केरला के थ्रू ये दिया जाता है इन रिकॉग्निशन टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा. Okay, whatever contribution the person has made to the Malayalam cinema, it is awarded for that contribution only. अब उसका प्राइज वैल्यू है, it carries a purse of ₹5 lakh, a plaque and a citation. So 5 लाख रुपए एक प्लेग और citation दिया जाता है for as prize money to this award. Paytm Money launches exchange traded funds. Okay, so this is something related to the economy again. So finances हम फिर से देख रहे हैं that Paytm Money, the wholly owned subsidiary of fintech company Payment. Fintech का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आपके बिजनेस करते हैं.
सो दिस इज द फिनटेक कंपनी ऑफ इंडिया। पेटीएम आपको पता है 2010 में वरुण श्रीधारमू, ओके। सो जो है ये आपकी हेडक्वार्टर्स इसकी नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इनका एम क्या है और ये ईटीएफ क्या है, ही like this particular ETF has recently launched exchange traded funds after getting approval from Securities Exchange Board of India. Okay, why this has been launched? To attract 1 lakh investors in next 12 to 18 months through ETF. Okay. Now Facebook has all, अब देखो जो हमारा पेटीएम है उसने कुछ किया तो अब फेसबुक है वो भी कुछ करेगा। वो क्या करेगा? रिसेंटली फेसबुक हैज़ रोल्ड आउट अ डेडिकेटेड ऑफलाइन टू ऑनलाइन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस गाइड फॉर इंडिया। तो उन्होंने एक गाइड प्रोवाइड किया है इंडिया के जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो लोग चलाते हैं उनको। ओके, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय फेसबुक. It has been launched as part of $4.3 million, approximately 32 crore rupees, granted and announced by Facebook in order to support Indian SMBs. ओके, जो आपके स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन से उनको सपोर्ट करने के लिए एक गाइड लॉन्च किया है, बिकॉज दे आर न्यू टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो द गाइड हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय फेसबुक. Now what are the key features of this guide? It has been designed to, अब ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को गाइड बना के भेज दिया कि भाई वो एक स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन है, आप जाइए उसके घर पे उसको गाइड कीजिए. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल गाइड. तो उसके फीचर्स क्या क्या है हम वो पढ़ रहे हैं. तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है that it will provide step by step directions on how the smallest of the businesses can be built डिजिटल प्रेजेंस क्विकली. ओके, हाउ द स्मॉल बिजनेसेस वो कैसे अपना डिजिटल प्रेजेंस को बना सकते हैं और वो कैसे उनके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं ऑनलाइन. एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज समथिंग न्यू फॉर द इंडियन मार्केट्स एंड द बिजनेसमैन. सो ये गाइड आपको इट वुड बेसिकली गिव यू द डायरेक्शन स्टेप बाय स्टेप, जिसके थ्रू आपके जो कस्टमर्स हैं आप उनको रीच आउट करके अपना जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको बढ़ा सकते हैं. ओके, सो इट हैज़ enabled customers to get cash support. Okay, it is available in Hindi and English. Okay, so in both the languages it is available. तो फेसबुक ने एक और प्लान की है चीज़, दैट इट इज़ गोइंग टू लॉन्च नेक्स्ट लेग ऑफ बूस्ट विथ फेसबुक इनिशिएटिव. तो ये बूस्ट विथ फेसबुक इनिशिएटिव क्या है? इट इज़ फेसबुक्स फ्लैगशिप स्किलिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम. जो हमारे यूथ बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको स्किलिंग और लर्निंग के जो स्किल्स है, ओके, जो स्किल्स हैं लर्निंग के और जो बाकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं जिसके थ्रू वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक और एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ का. तो उसी के लिए ये यंग पीपल को टीच करने के लिए एक प्रोग्राम या इनिशिएटिव फेसबुक के द्वारा लाया गया है. सो गूगल इंडिया, अब फेसबुक ने कुछ किया तो गूगल कैसे पीछे रह जाए? ओके, सो गूगल ने क्या किया, दैट गूगल इंडिया इन अक्टूबर 2022 इट हैड टाइड अप विथ थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज Zoho, Swiggy and Dunzo to help SMBs build their digital presence. तो फेसबुक से पहले जो गूगल इंडिया है उसने भी SMBs जो आपके स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल प्रेजेंस उनका बढ़ाने के लिए एक एक डील करी है विथ Zoho, Swiggy एंड Dunzo. तो जिससे कि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है ये रीच आउट कर सकते हैं SMBs को टू हेल्प देम आउट. सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गूगल इंडिया. ओके, तो गूगल इंडिया जो गूगल इंडिया है तो वहाँ पे आपने देखा था कि जो हमारे सुंदर पिचाई जी हैं वो भी आए थे. ओके, तो वो भी आए थे एंड जो ही हैज़ बीन ही इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट? So now we are studying, this is very important topic and I think we need to study this topic in
in much detail, so that we could understand that what is going on outside India. ठीक है, मैं इंडिया की बातें पता है, दैट्स कूल, दैट्स वेरी गुड, बट द थिंग इज ऑल्सो दैट यू शुड ऑल्सो नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड इंडिया, क्योंकि जो भी चीज़ें इंडिया के बाहर हो रही हैं इंडिया पर उन चीज़ों का असर पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, जो इवेंट्स हो रही हैं इंडिया के बाहर। ओके, जो ट्रेड्स हैं, जो कल्चरल टाइज हैं आपके, जो टेरिटोरियल टाइज हैं वो डिसरप्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। So we should understand that what are the things which are going on outside India. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेक्सिट एरा। ओके, यूके जापान के बीच आपकी एक डील की गई है, अ डील फॉर द पोस्ट ब्रेक्सिट एरा। तो ब्रेक्सिट क्या है हम पहले वो समझेंगे। ओके, अभी हम बस ये समझते हैं कि यूके और जापान की एक डील हुई है। डील मतलब ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच। तो इसमें ये लिखा हुआ है दैट इट इज मार्किंग द यूकेज फर्स्ट बिग पोस्ट ब्रेक्सिट डील ऑन ट्रेड। तो ये ब्रेक्सिट क्या है, नाम बड़ा अच्छा है, लेकिन ये है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो वील बी मूविंग अहेड बाय अंडरस्टैंडिंग दैट फर्स्ट व्हाट इज ब्रेक्सिट। ओके, सो ये ट्रेड डील है आपकी, वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलिए ये समझते हैं कि आपका जो ब्रेक्सिट है वो क्या होता है। तो ब्रेक्सिट जो है, सबसे पहले BR, इसका मतलब है जो ब्रिटेन है आपका वो एग्जिट कर गया। किससे एग्जिट कर गया, वो EU से एग्जिट कर गया। ठीक है, आपका जो ब्रिटेन था वो EU से एग्जिट कर गया। अब क्या हुआ, ये जो ब्रेक्सिट है, तो ये जो EU से एग्जिट करना उसका कैसे इस चीज़ को अफेक्ट करता है कि जो ब्रिटेन है उसकी डील्स बाकी कंट्रीज के साथ अब कैसे हो रहे हैं, क्या क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स उसके छूट गए हैं या क्या वो नए बना सकता है। तो हमें यही चीज़ समझनी है। तो वो हम कैसे समझेंगे, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ब्रिटेन, आपका ग्रेट ब्रिटेन है और जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं आपके, ओके, सो जो आपके EU है, उसके अलावा आपका ग्रेट ब्रिटेन हो गया। ओके, सो ये जो दो चीज़ें हैं ये अब अलग अलग हो गई हैं। अब जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है, आपको इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वहाँ पे इंग्लैंड आता है आपका, दूसरा आपका आता है स्कॉटलैंड, ओके, तीसरा आपका वेल्स आता है। तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन हो गया। तो इसमें से ये आपका जो है, ठीक है, ये वेल्स और इंग्लैंड मिला के ये आपका होता है ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन कह लीजिए या यूके कह लीजिए। ठीक है, स्कॉटलैंड है वो EU के साथ है अभी भी। ओके, वो EU के साथ है अभी भी। सो द पॉइंट हियर इज दैट why, like Scotland is with EU, right? It is with EU, but Britain has moved out of EU, moved out of EU. Okay, so that's the point. अब हमें ये समझना है कि ये जो ब्रेक्सिट है ये हुआ कैसे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि ये एकदम से हो गया अचानक से। सो जो आपका ब्रिटेन है, ओके, ब्रिटेन में 2016 में एक रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, इट इज पीपल्स विल। लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये चीज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, एंड दे हैव टू आंसर इन यस और नो। ओके, सो अगर आपके नंबर ऑफ यस ज्यादा है तो उस चीज को एक्सेप्ट कर ली जाती है, बिकॉज दिस इज व्हाट द पीपल, द पब्लिक वांट्स। ओके, और अगर आपके नो ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वो चीज़ नहीं करना चाहते। ओके, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड रेफरेंडम। तो 2016 में एक रेफरेंडम कराया गया, उसमें ये पूछा गया कि क्या आप EU के साथ रहना चाहते हैं या EU के साथ नहीं रहना चाहते। तो ब्रेक्सिट हो गया। ठीक है, जो आपका ब्रेक्सिट है वो हो गया है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेग्जिट हो गया, इसका मतलब ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया, तो नंबर ऑफ येस वर मोर. ओके, नंबर ऑफ येस वर मोर, दैट मीन्स मोर पीपल वांटेड टू मूव आउट ऑफ ईयू. जो ईयू है वो क्या है? यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने एग्जिट तो किया, पर ये इतने सालों तक ब्रिटेन जो था वो यूरोपियन यूनियन के साथ था ही क्यों? तो क्या हुआ, हम बैक स्टोरी समझते हैं. जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका फ्रांस और जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाहर आए, तो उन्होंने एक चीज डिसाइड की, दैट वी वुड एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद ईच अदर. तो फ्रांस और जर्मनी ने ये चीज डिसाइड की सो दैट वी वुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द वॉर्स इन द फ्यूचर टाइम्स. तो उन्होंने बोला सी, अब ऐसा क्यों कहा कि हम ट्रेड रिलेशंस रख लेते हैं? ऐसा भी है क्या कि दो कंट्रीज के ट्रेड रिलेशंस है तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं? तो वो आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर दो कंट्रीज के बीच में काफ़ी हैवी ट्रेड चलता है, दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी हैवी चलता है, सो दैट मीन्स कि अगर दोनों के बीच में वॉर होता है, अगर दोनों एक दूसरे से रिलेशन खराब करते हैं, तो उनकी जो इकोनॉमीज हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, वो क्लैश कर जाएंगी. सो इस फैक्ट को देखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस और जर्मनी ने बोला कि हम तो भाई ट्रेड रिलेशंस रखेंगे एक दूसरे के साथ. तो ये जब डिसाइड किया इन दोनों ने, तो वहाँ की और भी कुछ कंट्रीज थी जो ये जो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ओके, दिस पर्टिकुलर डील, इस डील को और भी जो कंट्रीज थी उन्होंने साइन कर दिया टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम वेजिंग वॉर अगेंस्ट ईच अदर. तो फिर उसके बाद आपका फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया आपका, ओके, आपका बेल्जियम आ गया, इटली आ गया, ल्यूजमबर्ग आ गया और नीदरलैंड्स आ गया. तो ये सारे यूरोपियन कंट्रीज साथ मिलकर इन्होंने ये एक ट्रेड डील थी वो स्टार्ट कर दी. तो ये जो ट्रेड डील थी, ओके, ट्रेड डील जो थी वो सबसे पहले आपके कोल और स्टील में हुई. ओके, ये जो सेक्टर है इन दो में स्टार्ट हुई, कोल और स्टील में. ओके, तो अब ऐसा है कि जो यूके है वो 1973 में ज्वाइन किया ईयू, उसने ज्वाइन किया. तो इसमें क्या है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखते हैं. जो ईयू में जितने भी कंट्रीज या मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखते हैं कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे हम एक दूसरे के ऊपर. लोगों को वीज़ास की ज़रूरत नहीं है. ओके, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं. ओके, आप कहीं पे भी रहते हैं, आप दूसरे प्लेस पे जाके एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं विदाउट एनी बैरियर. तो ये ही सारे प्रॉफिट्स को देखते हुए 1973 में जो आपका यूके है उसने भी ईयू को ज्वाइन कर लिया. तो कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो 1975 में एक रेफरेंडम फिर से कराया गया. अब ये जो रेफरेंडम था इसमें नंबर ऑफ नोज वर मोर. ओके, सो नंबर ऑफ नोज वर मोर, दैट मीन्स लोग चाहते थे कि हम ईयू के साथ रहें. तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें या बेनिफिट्स दिख रहे थे उस टाइम पे जो उनको 2016 का जो ईयू के साथ उनका द डील, वो उससे उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे. ओके, सो ये कहानी हो गई आपके पुरानी वाली. सो अब क्या हो गया, अब 2016 में क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो आपका ब्रिटेन है उसने बोला दैट नो, वी वुड नॉट बी इंगेजिंग विथ ईयू एनी मोर. तो ऐसा इसलिए बोला गया, सी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि जो ब्रिटेन है उसके जो पार्ट्स थे दे वर टेकन अवे. ओके, ब्रिटेन अपने आप में एक बड़ी कंट्री है, नॉट एरिया वाइज, बट द थिंग इज दैट ब्रिटेन है, सोचिए उसने कितनी सारी कंट्रीज को रूल किया है. ओके, इंग्लिश कॉलोनीज इतनी सारी, पूरा ग्लोब पर अगर आप देखें तो इतनी सारी इंग्लिश कॉलोनीज स्टैब्लिश करी थी उन्होंने. सो दे हैड देयर ओन ईगो कि हमारा जो ब्रिटेन का पावर है इट इज समथिंग हियर. और वो जब ईयू में ज्वाइन कर रहे थे तो द पावर्स वर टेकन अवे. ओके, they were not having as much power as they could have in their domestic scenario.
सो ये प्रॉब्लम थी कि ब्रिटेन की पावर्स जो थी वो कम होती जा रही थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो ईयू के रेगुलेशंस थे, ठीक है, अब आप किसी ट्रेड डील में एंटर करते हैं, देन देयर वुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो रेगुलेशंस थे वो ब्रिटेन के लिए अच्छे नहीं थे, ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं थे, या ब्रिटेन के कुछ ऐसे कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे जिनके अगेंस्ट जा रहे थे वो। ओके, सो वो दूसरा पॉइंट हो गया। जो आपका थर्ड पॉइंट है, माइग्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो माइग्रेट, दे वांटेड पीपल to migrate into their country, but the problem was that they were also worried that their employment was snatched by these immigrants. ठीक है, तो स्कॉटलैंड से लोग आ गए, जर्मनी से लोग आ गए, फ्रांस से लोग आ गए आपके ब्रिटेन में। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ के लोग हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि दूसरे लोगों को मिल रहा है। सो दिस वॉज डिसएडवांटेज। तो इसी डिसएडवांटेज को देखते हुए जो ब्रिटेन है उसने ये डिसाइड किया कि अगर हम ईयू डील से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ईयू में तो अगर हैं मेंबर, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप सबको अलाउ करें अपनी कंट्री में आना। ओके, अपनी कंट्री से किसी को भी कहीं पे भी भेज सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट आप इक्वली दें। सो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव टू फॉलो इफ यू आर एज ईयू मेंबर। ओके, तो उन्होंने बोला कि अगर हम ईयू डील से एग्जिट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन रखेंगे। उसमें क्या होता है, जो भी बंदा आपकी कंट्री में आ रहा है आप उसको स्कोर देते हैं। स्कोर उसके एजुकेशन के बेसिस पर, उसके जो जॉब स्किल्स हैं उसके बेसिस पर, ओके, उसके जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पर, जो उसके अदर स्किल्स हैं उनके बेसिस पर। ओवरऑल आप ये देखते हैं कि वो अगर बंदा आपकी कंट्री में आ रहा है, वुड ही और शी कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमी और नॉट। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन के बारे में। तो ये ब्रिटेन ने बोला कि अगर हम ईयू डील से बाहर आते हैं तो हम इसको भी फॉलो कर पाएंगे। ओके, तो ऐसा भी था कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं आपके, जो वेजेस हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था। ओके, तो वो इफ़ेक्ट को देखते हुए जो ब्रिटेन था वहाँ पे रिसेशन की कंडीशन आने लगी थी, जो कि 2008 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उससे भी भयानक कंडीशन होने वाली थी। तो ऐसा ही हुआ। तो अब ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो हमारा ब्रिटेन है उसको पावर, ठीक है, उसको हम आई राइट इट डाउन अगेन। पहला पॉइंट जो है, ब्रिटेन को पावर चाहिए थी। ओके, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, ब्रिटेन को माइग्रेशन से प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आपका हो गया रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो हो गया आपका जो करेंसी है, करेंसी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। करेंसी से क्या फर्क पड़ता है जो ब्रिटेन और ईयू की है। सी, कॉमन करेंसी थी, लेकिन जो इंग्लैंड है हमारा वहाँ पे पाउंड ही चलता है। तो प्रॉब्लम पता है ये थी कि जो आपका इंग्लैंड है प्लस जो बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका ग्रीस हो गया, तो ग्रीस जो है और स्पेन हो गया आपका, ये जो कंट्रीज थी इनके ऊपर काफ़ी डेट था। ठीक है, काफ़ी डेट था इनके ऊपर, काफ़ी कर्ज था, इनकी जो इकोनॉमी थी वो डाउन होती जा रही थी। ओके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। तो ये डेट की वजह से क्या होता था, ये तो आपका ग्रीस हो गया। अब दूसरी तरफ जो है वो आपका मान लीजिए जर्मनी है। जर्मनी जो है वो आपका मस्त हाई ग्रोथ पे है, हाई ग्रोथ पे आपका। ओके, हाई ग्रोथ मस्त है उसका, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अब इससे जो ईयू थी, ओके, जो ईयू का कमीशन, जो बैंक था, जो उनका कॉमन बैंक था, ईयू का जो कॉमन बैंक था, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि हम क्या करें। हम स्टिमुलस दें जो ये कंट्रीज हैं, या फिर हम प्रूडेंस दें।
सो दे वर कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स कि हम स्टिमुलस तो उनको देंगे जिनकी इकोनॉमीज कम है, तो अगर उनको देंगे तो सबको देना पड़ेगा। अगर हम प्रूडेंस देते हैं जो ऑलरेडी ठीक ठाक इकोनॉमीज है, सही चल रही हैं, तो उनसे हम कुछ ऐसी सब्सिडीज हैं जो हम ले लेते हैं, तो हो सकता है कि इससे हमारा फ़ायदा हो, जो बाकी कंट्रीज हैं उनका फ़ायदा। तो ये जो बैंक थी वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हम क्या करें। अब ये तो आपके उनके लिए हो गया जहाँ पे करेंसी यूरो थी। अब आपका जो इंग्लैंड है वहाँ पे तो भाई पाउंड यूज़ होता है, तो अब पाउंड के लिए क्या किया जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि जो फिस्कल स्टेबिलिटी थी वो भी इन दोनों के बीच में ढंग से काम नहीं कर रही थी। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो ब्रिटेन है उसने फाइनली डिसाइड कर लिया 2016 के रेफरेंडम में दैट वी आर मूविंग आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो स्कॉटलैंड है, ठीक है, इट ऑल्सो कम्स अंडर ग्रेट ब्रिटेन टेरिटरी। तो जो स्कॉटलैंड है वो इसलिए बाहर नहीं गया, उसके कुछ उसको फ़ायदे दिख रहे थे। फ़ायदे जैसे कि आपका हो गया नो ट्रेड बैरियर्स, एज आई टोल्ड यू कि कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं होते थे। जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट था वो कम हो रहा था, एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, तो इकोनॉमी उनकी ठीक ठाक चल रही थी। एंड ऑल्सो द स्कॉटलैंड इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर फॉरेन कंपनीज। ओके, तो फॉरेन कंपनीज एटलीस्ट 40% इन्वेस्टमेंट जो था वो फॉरेन कंपनीज से आ रहा था स्कॉटलैंड में। सो दिस वॉज अ हैप्पी फेज फॉर स्कॉटलैंड। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, आपका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो भी नहीं छीना गया। सो स्कॉटलैंड वॉज हैप्पी टू बी इन द डील विथ EU. Okay, so what Scotland felt was it was safer within EU as compared to outside EU. तो ये आपका स्कॉटलैंड की कहानी हो गई। नाउ व्हाट वी वर टॉकिंग इज दैट, मैंने आपको पूरा ब्रेग्जिट समझा दिया कि ब्रेग्जिट है क्या। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि अब ये जब EU से बाहर आ गया तो उसको अब वो सारी डील्स नहीं मिलेंगी जो EU और बाकी कंट्रीज की डायरेक्टली होती है। अब ब्रिटेन को अलग से डील्स करनी पड़ेंगी, आइसोलेटेड डील्स करनी पड़ेंगी। ओके, अब उनको बायलैटरल डील्स करनी है, जैसे जापान हो गया, US हो गया, इन सब के थ्रू। ओके, सो की फीचर्स ऑफ ट्रेड डील। अब ये जो UK और जापान के बीच में डील हुई है इसमें ऐसा बोला गया है दैट दिस डील, अंडर दिस डील द एक्सपोर्ट्स टू जापान वुड बी टैरिफ फ्री। 99% टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे आपके जापान। ओके, इट्स एक्सपोर्ट्स टू जापान। That it could increase trade by 15.2 billion pounds in the long run compared with 2018. Okay, so जो deal है, this deal removes Britain's tariffs on Japanese cars in stages to zero in 2026, which is same as in Japan EU trade agreement. तो इनके जो relations हैं वो 2026 तक वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि जापान और EU relationship थे, this trade relationships थे. So Britain has expressed its interest in joining 11-member CPTPP. ये आपका क्या होता है? This is Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership. तो ये जो है ये TPP-11 भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? हम इसको TPP-11 बोलते हैं, जो कि हो गया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। 11 कंट्रीज इसमें होती हैं। ओके, सो ये उसी की बात हो रही है TPP-11। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनाई, कनाडा, ये सारी जो कंट्रीज़ है वो आती हैं। तो इसमें क्या हुआ था, TPP पहले बनाया गया था, तो जब वो बनाया गया था तो उस टाइम पे US ने इसको अप्रूव नहीं किया था। US विड्रू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, so because of that it was cancelled, but now it is a 11-member comprehensive progressive agreement for trans-pacific partnership. It is a free trade deal. So Japan has welcomed Britain's eagerness to join this trade deal. उसमें जापान भी है, तो जापान ने जो ब्रिटेन है उसको इनवाइट किया हुआ है। So Japan is already a member of TPP along with these countries. So what is the significance of this deal? Okay, now UK will be able to access Japan's agricultural market. ओके, जो पहले इट वॉज डन अंडर द एम्बिट ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो आपकी EU और जापान इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है दैट प्रोवाइड्स फॉर स्मूथ ट्रेड। ओके, सो दिस बेसिकली इज टू प्रोवाइड द स्मूथ ट्रेड बिटवीन द टू नेशंस।
ओके, जिसमें ड्यूटी फ्री, टैरिफ फ्री, जैसा कि हमने देखा वो सारे सिचुएशंस होंगे। जो जापान की ऑटो इंडस्ट्री है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज यू ऑल नो, इट विल गेट बेनिफिटेड इन द वेक ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन। जहाँ पे यूएस की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, तो वहाँ पे जो यूएस का एक्सट्रीमिज्म ना आ जाए बीच में, कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी नहीं होती, सो दैट द जापान्स ऑटो इंडस्ट्री वुड बी बेनिफिटेड इन दिस पर्टिकुलर वेक ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन। ओके, दैट मीन्स कि जो जापान है उसको काफ़ी हैवी कंपटीशन मिल रहा था यूएस की तरफ से। नाउ इट वुड बी बेनिफिटेड बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूएस और जापान दोनों में से जापान के साथ अगर उसकी ट्रेड डील हुई है तो वो उसी से खरीदेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, डेटा शेयरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके, रिकॉग्निशन ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशंस, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं इन दीज टर्म्स जो कि इस पर्टिकुलर डील को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। ओके, सो दिस गिव्स द ब्रीदिंग स्पेस when the UK exited the European Union. ओके, दिस इज़ द ब्रीदिंग स्पेस कि हाँ, अब हमारी जापान के साथ डील वैसी ही होगी जैसे हम EU में रहकर करते थे, कोई भी चेंज नहीं आया। सो दिस UK wants to make an example of this trade। अब वो चाहता है कि वो बाकी कंट्रीज भी देखे कि हमने जापान के साथ जो ट्रेड डील की है वैसी ट्रेड डील अगर आप हमारे साथ करते हैं, दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज, फॉर वट एवर कंट्रीज दे आर डूइंग द बिजनेस विद। Okay, Britain views the trade pact with Japan as gateway for London's entry into 11-member CPTPP। तो अब जापान आ गया है, अगर उसका जो पैक्ट है जापान के साथ वो सक्सेसफुल होता है, देन ब्रिटेन इज ऑल्सो पॉजिटिवली लुकिंग अप टू द लंडन्स एंट्री इनटू 11-member CPTPP। Now, what are the challenges to this deal? Okay, in absence of preferential trading terms in agriculture, UK has not one major consensus compared to the EU on farm quotas from Japan। तो जो फार्म एरियाज हैं वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, और जो यूके का ऑटो सेक्टर है वो भी काफ़ी स्लो हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स एग्जिट फ्रॉम EU। बिकॉज अर्लियर देवर ट्रेड डील्स विथ EU ओनली, नॉट विथ ब्रिटेन, बट नाउ एज आई टोल्ड यू कि उसको अलग से जाके सबसे अब अपने बायलैटरल रिलेशंस को स्टैब्लिश करना है। And the Japanese have emphasized the considerable stakes in EU-UK deal as the country's businesses based in UK rely on European supply chains। जो अब देखिए, अब पहले अगर आपके उसके साथ अच्छे रिश्ते थे EU के साथ, अब वो रिश्ते आपके बिगड़ गए, तो अब आपका जो सामान था जो पहले EU से आता था, ठीक है, अब वो भी डिसरप्ट हो गई ना वो सप्लाई चेन। सो जापान इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। Similar demands from EU in relation to rules on government aid for ailing companies and subsidies। और जो आपका सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती थी EU की तरफ से, तो क्या वो सब्सिडीज़ UK भी प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं, क्या वो उनके अंदर उतना पोटेंशियल है अभी, बिकॉज रिसेंटली ओनली दे हैव एग्जिटेड फ्रॉम दिस डील। सो उनके कुछ ऐसे डिमांड्स हैं, ओके, जो फुलफिल करने ज़रूरी हैं फॉर द बेटर ट्रेड एग्रीमेंट्स। Modest benefit for UK as per assessment, the trade deal between these two countries, it would increase in bilateral trade। 83% of projected benefits would accrue to Japan। In any case, the overall gain from the pact is modest 0.0। ये कुछ facts हैं जो कि ये बोलते हैं कि UK की जो GDP है it is going to be boosted compared to loss of trade after leaving the EU। So conclusion, the point, okay, the important point of this discussing all of this is that the trade deal reflects UK's government recognition of new and complex reality, obviously, and now it is in the relationship that is very complicated, breakup, this that, and now it is a permanent breakup now। So complex reality wherein Britain must strike out on its own as it engages with countries around the world। अब उसको नए रिश्ते बनाने, पुराना वाला छोड़ो, जो भी हो गया हो गया। Now they have to establish new relationships with other people। ओके, मूव ऑन करने का टाइम है, एंड होपफुली यूके काफ़ी बेहतर ढंग से मूव ऑन कर रहा है। सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट इट, and I hope you all are learning with all these lectures, and you all are also enjoying these lectures।
So keep learning with us. Thank you for listening.